In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only limited to going through a specified syllabus, but also about gaining knowledge. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sir Patappat Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Scientific Approach is run by a group of preeminent teachers, the group being led by Rahul sir. These teachers are the ones who keep the aforementioned points in mind whenever they teach, making sure that their students achieve heights. The main aim of Scientific Approach is helping the children reach their full potential and make the best out of their lives. Rahul sir has helped me reach certainty about what I shall choose when it came to taking a stream in 11th. His guidance helped me change my opinion and outlook on many things and still doesn't fail to do so. It was just for a month that he taught me in the 9th grade, and I knew who I wanted my science teacher to be in order to excel the subject. Even today, the man has simple goals, and to reach them, he makes videos available on YouTube for anyone and everyone so that he can make sure that he's there for every child who needs his help. On the days when we used to go to the coaching, we used to put up hundreds of questions, and the teachers there made sure that our inquisitiveness was satiated. They still have their websites on various social media platforms to help the children in every way possible. So I thank the teachers, especially Rahul sir, for helping me making a path for my future. Thank you. Good evening, everyone. Preeti, good evening. Simran, good evening. It's highly humid case at almost 38 degrees Celsius in Kanpur, waiting for monsoon, but it's still just wondering. तो आज क्या करना है? पहले तो लास्ट टॉपिक में आपको शायद कोई डाउट था जो डिस्कस किया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आई गेस नहीं नॉट वी हैव डिस्कस येट ना. आज क्या करना है? Hello Rahul, how are you, smarty? How you are smart enough like me? I am also Rahul Kumar Singh. Hope you must be dashing personality, not I am. Simran and Preeti, please text what topic I have to start or something. If there is some, the doubt in the previous topic, you may ask. You're most welcome to ask, I guess. तो जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड जहां तक मेरा ख्याल है, हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया था और आज हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है ना? ओहो, थैंक गॉड प्रीति, you are up to the mark. As I have finished my word and you texted DNA fingerprinting. And I guess I have also mentioned about the father of DNA fingerprinting. कौन बताएगा? जल्दी फटाफट टेक्स्ट करिए जरा. राहुल आपने बताया नहीं. A dashing personality, am I wrong? You are not a dashing personality. You must text, at least it should represent I am not wrong. And the people of name who belongs to Rahul must have some unique properties, unique gene. And what unique gene you are getting, that you must know that, and you must discuss with us, everyone. Hello everyone. So I should start, I guess. You want to just study, don't want to discuss the previous topic. Anna, you don't want to discuss the previous topic? Yeah, fine. So I should start. DNA fingerprinting. DNA finger printing. DNA फिंगर प्रिंटिंग. देखिए, जैसा ये वर्ड है वैसा एग्जैक्टली में होता नहीं है.
वेरी गुड सिमरन. अलेक्स जेफरी, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन थे? He was the scientist who actually designed this technique, invented this process to identify the similarities of the DNA fragments. So that the people can identify, people can resolve the dispute of the parental kind. We can even find the victims and culprits. We can distinguish by this method in a forensic science, which is the more these days it is very recently these days this technique is highly demanding forensic science. Very good, Dr. Lalji Singh. Great. Very good, Preeti. Very good, Simran. And Rahul is still wondering what I have to say. Isn't Rahul? You're just looking for the word. What should I say? Am I right? You must speak something after good evening. It seems to be like a gentle person, gentle boy, a cute guy. Chaliye. So apart from this gossiping, we can start DNA fingerprinting. देखिए, एक्चुअली में ये है क्या, पहले एक ब्रीफिंग में दे दूं आपको. देखिए, जो whatever the DNA we have, we possessing the DNA or types of the chromosome, all are similar. The variation is basically on the basis of how they are repeating the nitrogenous base sequences, जिसको हम लोग tandem कहते हैं, TANDEM, tandem. Oh Rahul, why you were absent? I think it's not good. And you must, I think you have lots of facilities. At least you must have such facility that you may watch all those videos offline from the app. तो ऐप में सारी वीडियोस हैं. आई गेस कि जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के हैं या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो ऑलरेडी पोस्टेड है, वो ऐप पे है बेटा, है ना राहुल. तो बिफोर ज्वाइनिंग यू मस्ट एक बार आपको दिखना चाहिए. 1.5 घंटे का वीडियो होता है ऑलमोस्ट, तो आपको टाइम निकाल के उसको एक बार वॉच करना होता है, सो दैट आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे आपके लिए, है ना राहुल. आर यू गेटिंग इट? एक बार बेटा इसको आप आज देख लीजिएगा, आज ही देख लीजिएगा, तभी आप कोरिलेट कर पाओगे, लिंक कर पाओगे कि आपने आज क्या पढ़ा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और पिछली क्लास में सर ने क्या पढ़ाया, आप उसको आप कोरिलेट कर पाओगे. ठीक है बेटा, चलिए कोई नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन आज ही पढ़ेंगे आप, तभी आपको याद भी रहेगा. तो मेक इट वेरी श्योर कि यू मस्ट स्पेयर एटलीस्ट 2 or 3 hours टू वॉच दोज वीडियोज फ्रॉम द ऐप, है ना. आइए अब मुद्दे की बात. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसा हम जानते हैं, UCAG, ये वो 4 सीक्वेंसेस हैं जो आरएनए में पाया जाता है, और जो हमारा उसमें है डीएनए में, वो है हमारा ATGC या AGTC, कुछ भी आप कह लीजिए, बात बराबर है. ये डीएनए में है और ये हमारा आरएनए में. एक वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म. क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म. एक वर्ड है हमारा वेरिएबल नंबर ऑफ tandem repeats. Variable number of tandem repeats. ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ tandem repeats. अब जरा इसको समझते हैं. इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है VNTR. जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, तो हमारा मोटिव इन्हीं दो स्टेप्स पे है, इन्हीं दो टर्मिनोलॉजी पे है, जिसमें हम बहुत आसानी से डीएनए में डिफरेंसेस को स्टडी कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, वी हैव 20 to 25,000 of genes present on 3
बिलियन बेस पेयर्स, ठीक। एंड द वेरिएशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ these base pairs, how these are arranged on the chromosome. जितने लोग आप दुनिया में देखेंगे सब में जो इन बेस पेयर्स का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल अलग का मतलब बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं निकलता है कि 99.99% बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जब क्रोमोसोम सेम है हमारे पास, क्रोमोसोम सेम का मतलब होता है वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, एंड बीइंग ए ह्यूमन वी ऑल हैव अ सेम क्रोमोसोम, दैट इज 46। हाँ, ये और बात है कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, दैट एवरीवन हैज क्रोमोसोम फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर forefathers, right? अब इफ दे हैव अ क्रोमोसोम्स, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारी हेल्प करता है इसी नंबर्स के वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को देखते हुए आइडेंटिफाई करने में, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर डीएनए इन्हीं का है, राहुल सर का है जो कानपुर वाले हैं, और ये वो बच्चा है राहुल, एक स्टूडेंट है जो, एक बच्चा है जो पता नहीं कहाँ का है बच्चा, ये आई डोंट नो, मतलब कहीं का भी XYZ प्लेस का है, तो वो वहां का है। दोनों राहुल है, दोनों का नाम राहुल है, लेकिन दोनों के पास जो डीएनए की सीक्वेंसेस होंगे, जो टेंडम्स होंगी, जो रिपीटेड सीक्वेंस होंगी नाइट्रोजनस बेस की, उसमें बदलाव होंगी जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इनमें ये बदलाव उनके पेरेंट्स से आ रहा है ना, मतलब हमारा जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा वो हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली बदल रहा होगा या होगा डिफरेंशिएशन, और जो बच्चा पढ़ रहा है मुझसे अभी राहुल, उसके पास जो डीएनए होगा उनकी सीक्वेंसेस उनके पेरेंट्स से आ रही हैं, उसमें अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगे। उसके बाद हमें समझना है एक वर्ड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या समझना है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बारे में आपको कोई आइडिया है? कोई बताएगा आप में से? एनीवन ऑफ यू? व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनीवन ऑफ यू? I hope everyone is smart enough to explain the word gel electrophoresis. कोई बताएगा आप में से? राहुल, सिमरन, प्रीति, anyone of you? What is gel electrophoresis? Please let me know. तभी मैं कहता हूं बेटा एक बार पढ़ लिया करिए, बहुत बार बार गुजारिश की है मैंने आप लोगों से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आजीवन ये चीजें याद रखनी है तो आपको ये पढ़ना होगा, याद रखना होगा। No idea? Simran, I can expect from your side what is gel electro VNTC? नहीं, what is बेटा analytical technique you wrote? Okay, fine. अच्छा मैं दोबारा बताऊं, ये ना देखिए, वेरिएबल वर्ड यू नो, वेरिएबल नंबर, टेंडम इज बेसिकली द शॉर्ट फ्रेगमेंट्स। ये मकान है, अब इसमें एक दीवार जो है वो 20 फीट की है, एक दीवार 10 फीट की है, और इस पूरे मकान की बात करेंगे तो इट विल बी सेपरेटेड इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ की हाउ फार लेंथ दैट वन वॉल बेयर्स, और यही घर के बनावट को चेंज करेगा, ठीक ना? डीएनए में भी वैसे ही हो रहा है। डीएनए में जो फ्रेगमेंट्स हैं एटीजीसी की,
वो किस तरह से रिपीट कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर हम एक आपको एज्यूम करके एग्जाम्पल दें कि एक बंदा है एक्स और एक बंदी है वाई, उसके डीएनए सीक्वेंसेस में ए की लगभग 2000 सीक्वेंसेस रिपीट हो रही है बार बार। मतलब इन शॉर्ट, बिल्कुल देसी ठेठ भाषा में, कि अगर 46 क्रोमोसोम पे ए लगभग 2000 जगह रिपीट होके आ रहा है एक्स में, और वाई में सिर्फ 2 ही जगह आ रहा है, देखिए चूंकि ह्यूमन है तो रिपीटेशन होगी। अब वो एक में 2000 जगह रिपीट हो रहा है, एक में 1 जगह रिपीट हो रहा है, दैट एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट द टू पीपल फ्रॉम वन टू अनदर। तो वो जो रिपीटेशन ऑफ द सीक्वेंस है, जीजीजी यूटीजीसी समथिंग ऑफ दैट, एटीजीजीसी टीजीजीजी समथिंग, कोई भी आपने एक फ्रेगमेंट उठा लिया, तो उस शॉर्ट फ्रेगमेंट्स को हम टेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडम। ठीक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेंडम कहते हैं, ठीक ना। अब ये टेंडम कितनी बार अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है, अपने स्ट्रक्चर्स को शो कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजिकली अपीयर हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार हम उसको फ्रेगमेंट में देख रहे हैं, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही सीक्वेंस, मतलब वही चारों बेस पेयर एटीजीसी किस तरह से अलग अलग ढंग से आ रहा है अलग अलग इंडिविजुअल में। जब हम उसकी बात करते हैं किस तरह से वो अलग अलग लोकेशन पे दिख रहा है, अलग अलग क्रोमोसोम पे उसके किस तरह से अपीयरेंस हैं, हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सिमरन, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकली उसका अपीयरेंस बहुत अलग अलग ढंग से हो रहा है, अलग अलग जगह पे। कहीं पे ए जी टी 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 है, सी जी है, ऐसे करके है, कहीं पे जी जी टी टी ए सी सी है, कहीं ए टी जी सी 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 टी टी जी जी है। तो ये क्या है? ये उसकी पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है कि हाउ दे अपीयर ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम इन द ह्यूमन बीइंग। और उसी के रिपीटेशन को जब हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसको हम VNTR कहते हैं, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, कि वो फ्रेगमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उस सीक्वेंस की रिपीटेशन, वो हमारी क्या कहलाती है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब क्लियर हो गया? मतलब एक क्रोमोसोम जिसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए भी कह रहे हैं, वो डीएनए कई सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, कई तरह से उसको हम देख पा रहे हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग तरह से। तो उस कंडीशन को जो अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है क्रोमोसोम में, उसको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कह रहे हैं। आई होप इज इट क्लियर नाउ? कोई डाउट किसी को? अब तो समझ में आ गया। सिमरन, आपकी डाउट अब खत्म हुई? अभी भी है? वेरी गुड। अब हम लोग जहां थे फिर से पहुंचे, हम थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले टॉपिक पे। जरा इसके बारे में कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करें आप लोग। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? क्या है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? हमारा क्या है? कौन बताएगा आप में से?
बताइए, कुछ आइडिया दीजिए इसके बारे में, फिर तो हम डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट का नाम था सीलियस, TSELIUS, सीलियस, साइलियस भी कहते थे शायद। TSI, एक बार साइंटिस्ट को चेक कर लीजिएगा, TSILIUS, सीलियस, सीलियम नहीं है, सीलियस। ठीक है, इन्होंने पहली बार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिजाइन किया और इन्होंने बाय यूजिंग एगरोज पाउडर, जो किससे लिया गया, एल्गी से, थैलोफाइटन से, ALGAE, एल्गी से, ग्लोचिडियम पाउडर निकाला गया, उसको क्रश करके, और उस पाउडर को जेल के फॉर्म में यूज किया गया। बड़ा ही खतरनाक टॉपिक था ये, और अभी भी है हायर क्लासेस में। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब हो गया, बाय अप्लाइंग करंट इलेक्ट्रिसिटी वी आर सेपरेटिंग द फ्रेगमेंट्स। जेल एगरोज पाउडर से निकाला गया, ये एल्गी से लिया गया, ठीक है, ये एल्गी का है पार्ट। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पाउडर को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जब उसको हम इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में जब हम उसको सेट कर देंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे, जैसे हलवा देखा होगा आपने, हलवा जम जाता है तो वो एक बर्फी की तरह का एक मतलब स्ट्रक्चर ले लेता है। तो एगरोज पाउडर हम किस अमाउंट पे लेते हैं, उस अमाउंट के बेस पे हमारा वो जेल, या उस जेल में जो पोरोसिटी होगी, जो छेद होंगी, जो पोर्स होंगी, वो डिसाइडेड होती है। इन शॉर्ट, अगर हमें बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है तो हम एगरोज पाउडर कम लेंगे। जब उसका अमाउंट कम होगा तो जो जेल होगा उसमें बड़े बड़े ओपनिंग छेद होंगे, और हम इजीली उसको डीएनए को उस होल्स के थ्रू हम पास कर सकते हैं, बड़े फ्रेगमेंट्स को। अगर छोटे फ्रेगमेंट्स हैं और हमें पहले से पता है कि ये 10 किलो बेस पेयर का फ्रेगमेंट है, या 100 बेस पेयर्स के हैं, या 100 केबी के हैं, हमें उस डीएनए को सेपरेट करना है, तो हम वैसे केसेस में जो एग्रोज पाउडर है उसका अमाउंट बढ़ा देंगे। 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम, 250 ग्राम, ये डिपेंड करता है डीएनए के साइज के ऊपर कि हम डीएनए के किस फ्रेगमेंट को उस क्रोमोसोम से या उस सैंपल से सेपरेट करना। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट किसी को? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? शुड आई स्टार्ट? और ये हम पहले से जानते हैं, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, ठीक ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो इसको डायग्राम जरा आप एक बार देख लीजिए। ये हमारा एग्रोज है जेल, एग्रोज जेल है, ये वेल्स हैं, गड्ढा है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हम इसको पास करेंगे करंट, डीएनए वेल्स में डालते हैं हम लोग, तो ये सेपरेट होना शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो ये इसका जो मूवमेंट होगा डीएनए फ्रेगमेंट का वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। और जो फ्रेगमेंट सिमिलर दिखेंगे, जैसे ये दोनों फ्रेगमेंट सिमिलर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहीं ना कहीं जो सैंपल है डीएनए का, इन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। अगर हम पेरेंटल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब, अगर ये उस बच्चे का डीएनए है और उस बच्चे के 3 बाप हैं, कह रहे हैं हम तीनों बाप हैं उनके, तो बाप तो ओरिजिनली एक ही होगा ना बायोलॉजिकली, और उन तीनों के डीएनए के जो फादर्स 3 जो अपना दावा दे रहे हैं कि हम उसके उस बच्चे के पिताजी हम हैं, तो जब डीएनए को रन कराएंगे सैंपल्स के थ्रू, तो जिसका डीएनए
एक दूसरे से मिलेगा फ्रेगमेंट से, तो ये प्रूफ करेगा कि जो ओरिजिनल पप्पा हैं वो कौन वाले हैं। ठीक है, अब लिखिए जरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम करेंगे कैसे। तो हेडिंग लिखेंगे मेथड इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज method involved in DNA fingerprinting is पहला फर्स्ट पार्ट identification of desired DNA, identification of desired DNA, identification of desired DNA, लिख लिया पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। सेकेंड आइसोलेशन ऑफ दैट डीएनए, आपने पहले ढूंढ लिया फिर इसको निकाल लिया, फिर लिखेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर थर्ड लिखेंगे डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ टाइप ऑफ, ये हम लोग बायोटेक में भी पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं, देन ऑब्वियसली वी विल राइट इन द बायोटेक चैप्टर, वी विल डिस्कस, बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है डीएनए को किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर देना और उसके टुकड़े कर देना, फ्रेगमेंट बना देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, उसके फ्रेगमेंट्स को, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना, कट कर देना। जैसे ही आप एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अलग अलग तरह के, जैसे इको आर1 है, GAATTC को आइडेंटिफाई करता है, आप इको आर1 के कुछ ड्रॉप, जो एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि मैंने कहा आपसे, आपने अगर डीएनए सैंपल में उसको डाल दिया तो उसको वो पर्टिकुलर सीक्वेंस, जिसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, वो उस सीक्वेंस, मतलब इन शॉर्ट अभी समझिए, डाउट फिर ज्यादा हो जाएगा आपको, हमने वो एंजाइम डाला और डीएनए के टुकड़े हो गए, ठीक, और उसी एंजाइम से हमने उन सभी चारों सैंपल के डीएनए को कट कर दिया। अब चूंकि सेम एंजाइम यूज किया है तो उसमें फ्रेगमेंट्स भी जो होंगी वो उसकी कटिंग भी सेम होंगी। वही बात हो गई कि एक ही कैंची से अगर आप काटते हैं, या सिंपल अगर एक ही टाइपिंग मशीन से वर्ड टाइप होगा तो सब पन्ने में वर्ड की जो कैरेक्टर्स होंगे, जो नेचर होंगी, वो एक ही जैसे छपी हुई दिखेगी। तो उसी तरह जब एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज कर रहे हैं तो डीएनए की कटिंग सभी सैंपल्स में सेम होंगी, ठीक। लेकिन वो डिपेंड भी करता है कि जो सोर्स है वो कैसा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए, ट्रांसफरिंग ऑफ सैंपल इनटू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग ऑफ सैंपल इनटू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो फ्रेगमेंट्स आपने बनाए हैं वो फ्रेगमेंट्स मतलब वो डीएनए अभी तो मैं दिख नहीं रहा, तो हमने उस डीएनए सैंपल को इस गड्ढे में, जिसको वेल्स कह रहे हो, उसमें एल्यूट कर दिया, भर दिया, जमा कर दिया। जैसे ही आप करंट फ्लो करेंगे, इधर से नहीं, टर्मिनल से जब फ्लो करेगा तो जो डीएनए नेगेटिव चार्ज है वो ग्रेजुअली पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और जिस डीएनए सैंपल को हमें निकालना है उसको हम उतने छोटे पार्ट को कट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और उसको हम सेपरेट कर लेंगे। अब इससे क्या हो गया, जो डीएनए हमें चाहिए हमने उसी पर्टिकुलर डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करके बाहर कर लिया, और जैसे ही बाहर किया
फिर उस डीएनए को हमने ब्लॉटिंग पेपर पे ट्रांसफर कर दिया। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, transfer of DNA fragment from electrophoretic chamber to nitrocellulose paper oblique nylon paper oblique blotting paper, nitrocellulose paper oblique nylon paper oblique blotting paper। ठीक है, क्या किया आपने, वो डीएनए जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किया है, निकाला है उस जेल से, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया नायलॉन पेपर पे। ठीक, जब आप नायलॉन पेपर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उस ब्लॉटिंग के बाद हम उसको हाइब्रिडाइज करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कोरिलेट करेंगे। नेक्स्ट वन लिखेंगे, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ these DNA, hybridization of these DNA by using VNTR probe, by using VNTR probe, PROBE। भाई अगर हमें पहले से पता है कि ये फ्रेगमेंट हम ढूंढ रहे हैं, नहीं, और हमारे पास ये डीएनए फ्रेगमेंट निकला है या मिला है कहीं से, तो जब हमें कंपेयर करना है तो हम ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या इससे कंपेयर करेंगे, एक एक करके मिलाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही यही है कि वी आर जस्ट कंपेयरिंग दोज डीएनए विद अ VNTR प्रोब, जो हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लेते हैं, जो लैब में हम बना पाते हैं। प्रोब के साथ अगर वो मैच कर गया तो वो बॉन्ड बना लेगा, अगर मैच नहीं किया तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, और ये हमारे लिए आसान कर देगा उस डीएनए को ढूंढना जिसके बारे में हमें पहले से पता है, या पहले से हमें जिसके ऊपर शक है कि यही वो मर्डरर है, जिसके ब्लड सैंपल से डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया है। आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? लास्ट में लिखेंगे डिटेक्शन ऑफ डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी। फिर हम उसको फाइनली, ऑटो रेडियोग्राफी एक मशीन है जिसकी हेल्प से हम डिटेक्शन ऑफ डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी, प्लस स्टॉप, बाय ऑटो रेडियोग्राफी, डिटेक्शन ऑफ डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी, डिटेक्शन ऑफ डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी। देख लिया? डन, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए, कंटिन्यू करके लिखिएगा, इन ऑटो रेडियोग्राफी we used ETBR with DNA fragments।
इन ऑटो रेडियोग्राफी, in autoradiography we use ETBR as a dye with DNA, as a dye with DNA। देखिए ETBR, इसको हम कहते हैं इथीडियम ब्रोमाइड डाई used for identifying DNA। नेक्स्ट लाइन लिखिए, ये इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे समझाएंगे अभी VNTR प्रोब के बारे में। प्रोब की स्पेलिंग बेटा VNTR प्रोब, PROBE प्रोब। लिख लिया? ये लिख लिया? लिखेंगे, लिखिए इसमें ETBR attached with hydrogen bond of DNA, ETBR attached with hydrogen bond of DNA and impart pink color in autoradiography, impart pink color in autoradiography, impart pink color in autoradiography। मतलब ये वो डाई है जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के डिटेक्शन में यूज किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ETBR के बारे में। चिलेटिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है, और जब वही हाइड्रोजन बॉन्ड को जब हम ऑटो रेडियोग्राफी में देखते हैं तो वो पिंक कलर को शो करता है, और फिर हम इजीली उस पर्टिकुलर डीएनए को विजुलाइज कर लेते हैं, हम देख पाते हैं। अब आइए सिमरन के सवाल पे, VNTR प्रोब क्या है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग कार्बन कॉपी यूज करते हैं। कार्बन कॉपी का क्या काम है? कार्बन कॉपी का काम है कि हम उससे कई सारी कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां कॉपीज नहीं बनाते हम, प्रोब की हेल्प से हम ज्वाइन कर लेते हैं, अटैच कर देते हैं दो फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारा ये डीएनए फ्रेगमेंट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट इतना आसान तो नहीं है कि बोल दिया डीएनए फ्रेगमेंट और हमें दिख जाएगा। तो इसको ढूंढने के लिए बड़ा ही नायाब तरीका निकाला साइंटिस्ट ने, क्यों ना हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लें। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मतलब एडेनिन थाइमिन से जुड़ गया, थाइमिन एडेनिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, फिर CCG हो गई। मतलब हमारे पास ये सीक्वेंस आर्टिफिशियली बना दिया गया, और इसी को हम प्रोब की तरह यूज कर लिए। मतलब क्या? आपने ये सीक्वेंस जैसे उस सैंपल में डालेंगे
तो ये आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। और बॉन्ड ये तभी बनाएगा जब उसको अपनी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगी। मतलब दिस इज 100% प्रूफ कि आपने प्रोब यूज किया है तो ये उसी से जाके जुड़ेगा जिसके लिए इसके पास सीक्वेंस उस सैंपल में अवेलेबल है। else it will never bind with any one of the sequence and we can separate it from the solution। प्रोब डाला, प्रोब का नेचर है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा, हमने उसको अलग कर लिया। तो प्रोब इज समथिंग अलग अलग है, प्रोब बायोटेक में यूज पढ़ेंगे अभी इसके बारे में और भी अच्छे ढंग से। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन। VNTR प्रोब, ठीक है, VNTR प्रोब, VNTR प्रोब क्लियर हो गया। सिमरन इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रीति, सिमरन, रोहिका, राहुल बाबू कहां हैं आप तो भूल गए लगता है मुझे। लिखेंगे प्रोब हेल्प अस टू इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ DNA सैंपलिंग। प्रोब PROB प्रोब हेल्प अस टू सेपरेट, probe help us to separate DNA accurately from given sample, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। थैंक यू राहुल, फाइनली आपने जवाब दिया। प्रीति एंड सिमरन, यू टू, वी मस्ट बी एक्टिव इन आवर ऑनलाइन क्लास सो दैट देयर शुड बी अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया 100%, कोई डाउट नहीं किसी को। एक सवाल 100% मिलेगा आपको नीट एग्जाम में, बोर्ड में तो खैर नहीं आता, ये नीट में आता है। ये सीक्वेंस गिवन होगा, इसका आपको प्रोब आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पॉलीमॉर्फिज्म, जो अभी पूछा भी था किसी बच्चे ने मुझसे कि सर ये भी बताइए क्या होता है। लिखिए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब ढेर सारे, और मॉर्फिज्म का मतलब हो गया मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। मतलब यही राहुल सर है, अलग अलग ड्रेस में आ रहे हैं हर दूसरे मिनट में। मतलब वही चारों सीक्वेंस है और वही चारों सीक्वेंस अलग अलग ढंग से DNA में दिख रहा है। ATGC द 4 मतलब फिक्स सीक्वेंस है, दुनिया के किसी भी इंसान में जो डिसऑर्डर्ड नहीं है उन सभी में वही सीक्वेंस मिलेंगी, लेकिन उस सीक्वेंस का ऑर्डर अलग अलग होगा और उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक, कोई डाउट अब इसमें किसी को भी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? लिखिए, और जो बचा खुचा रह गया है वो भी क्लियर हो जाएगा अभी लिखने के बाद। लिखेंगे इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएशन एट DNA लेवल। ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, दिस विल बी द करेक्ट वर्ड। इट इज वेरिएशन एट DNA लेवल in individual, it is inheritable, it is inheritable from one generation to, it is inheritable from one generation to another, one generation to another।
लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, probability of finding polymorphism, probability of finding polymorphism probability of finding polymorphism is maximum in सेम स्पेशीज। जैसे एक ब्लड सैंपल मुझे जंगल में मिला है, अब वो ब्लड सैंपल, या ऐसे समझिए कि 2-3 जानवर आपस में लड़ रहे हैं एक इंसान को खाने के लिए। बाघ है, चिता है, शेर है और एक इंसान है या बकरी है। खून तो तीनों के पास है, तीनों आपस में मतलब 2-3 एनिमल्स तो लड़ रहे हैं अपने उस प्रे को मारने के लिए या खाने के लिए इंसान को, ठीक है। इंसान भी घायल है, उसके भी खून बह रहे हैं और उन तीनों एनिमल्स के भी खून बह रहे हैं। सारी कहानी खत्म हो गई। हम उसी स्पॉट से 4 ब्लड सैंपल कलेक्ट करके ला रहे हैं, वो 3 एनिमल का है और एक उस आदमी का है जिसकी मौत हो गई है। अब ब्लड तो ब्लड है, वही हीमोग्लोबिन है, सभी मैमल्स हैं, लेकिन हम जो चेंज देख रहे हैं, जो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये इसका है, ये इसका है, कैसे? ये आइडेंटिफिकेशन हमारा डीएनए का या उस ब्लड से सैंपल जो हमें मिल रहा है उसके थ्रू जो हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम ये पहले से जानते हैं, हमारे पास डेटाबेस में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे बारे में पता है आपको 2968231 बिलियन 25,000 जीन। उसी तरह टाइगर का भी है, चीता का भी है, लायन का भी है। तो चूंकि वो सभी 4 फुटेड एनिमल हैं, तो उनमें जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा, उनमें जो डीएनए का वेरिएशन होगा, उसकी जो रेशियो होंगे वो ज्यादा होंगी, लेकिन हमारे मतलब एक ह्यूमन में उसके कंपैरेटिवली कम होगा। तो एक तो यही वेरिएशन हो गया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक। अब उसका तो कोई चेहरा है ही नहीं, उस बंदे का, उसको तो खा गया है पूरा। अब उसको हम रिलेट कैसे करेंगे कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो जो फैमिली अपना दावा दे रही है कि हाँ मेरे बच्चा है या मेरी फैमिली को का ये है, तो ऑब्वियसली उस फैमिली का डीएनए भी लेंगे हम, उसका भी ब्लड सैंपल लेंगे और फिर कोरिलेट हम करेंगे। अगर देयर इज अ मैक्सिमम सिमिलरिटीज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट होता है, तो इसका मतलब ये उसी फैमिली का बच्चा था और ये क्लियर हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कोई डाउट? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? कंटिन्यू करके लिखेंगे, बाय यूजिंग दिस प्रोसेस या बाय यूजिंग दिस टेक्निक, दैट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, बाय यूजिंग दिस टेक्निक we can easily resolve parental dispute and predominantly used in forensic science. Predominantly used in forensic science. Predominantly used in forensic science. फिर हेडिंग लिख लीजिए VNTR, कैपिटल V, कैपिटल N, कैपिटल T, कैपिटल R, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। लिखिए वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। It belongs to satellite DNA. It belongs to satellite DNA
It belongs to satellite DNA, that is sat DNA, and DNA fragments सिमरन VNTR को रिपीट करना है, VNTR हेडिंग है, इसमें लिखना है आपको इट बिलोंग्स टू सैटेलाइट। ये मैंने पढ़ाया है आपको, सैटेलाइट डीएनए, सैट डीएनए अगर याद हो, सैट डीएनए, इट बिलोंग्स टू सैट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। फिर लिखेंगे, लिख लिया, लिख लिया, हो गया? हाँ लिखिए, दीज सीक्वेंस हैव लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन, these sequence have large number of variation which become important tool, these sequence have large number of variation and become important tool and important, इसको छोड़ दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा, an important tool in forensic science, in forensic science. Its size varies from 0.1 to 20 किलो बेस, KB, किलो बेस पेयर भी लिख सकते थे, 20 किलो बेस। हाँ सिमरन, क्या छूट गया आपका? VNTR से पहली वाली लाइन रिपीट करेंगे, अब ऐसे तो बता नहीं सकता मैं, कौन सी लाइन? I can't say which line you lost. If you repeat, if you write the line, maybe I can able to dictate. Please write the line so that I able to find the dictating line. Okay, fine. हाँ, that's a good idea. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नोट में लिखिएगा, नोट में, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस a small amount of agarose powder in gel electrophoresis, a small amount of agarose powder help in isolating large DNA fragment, while more amount of agarose powder
while more amount of agarose powder helps in detecting short DNA fragments. ये याद रखना है, ये एमसीक्यू में आया है कई बार कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एग्रोज पाउडर विल डिक्रीज द लेंथ ऑफ द डीएनए और इंक्रीज द लेंथ ऑफ द डीएनए दैट वी विल सेपरेट। तो जितना ज्यादा पाउडर, जो जेल की थिकनेस होगी वो उतनी कम होगी। अब इसको समझना जरूरी है। एज फॉर एग्जांपल देखिए, देखिएगा ध्यान से, ये हमने एग्रोज पाउडर बनाया है, जेल बनाया। आपने क्या लिया, आपने एग्रोज पाउडर का अमाउंट कम कर दिया, ठीक। तो जब कम कर दिया तो ये एग्रोज पाउडर का जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर है, ठीक। तो जो डीएनए एंटर करेगा वो फ्रेगमेंट साइज क्या होगा, बड़ा होगा, सीधा साइज नहीं, ये डीएनए जो है वो बड़े बड़े साइज के होंगे। जैसे ही आप एग्रोज पाउडर का अमाउंट बढ़ाएंगे, जैसे ही आप एग्रोज पाउडर का अमाउंट बढ़ाएंगे तो जो इसकी थिकनेस है, क्योंकि एग्रोज तो बहुत हो गया तो उसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, एग्रोज पाउडर ज्यादा है तो वो पास पास है, तो जो फ्रेगमेंट जो होगा साइज का, जो डीएनए होगा जो एंटर करेगा, क्योंकि ये डीएनए तो इसी से होकर फ्लो करेगा, मतलब उसी जेल के होल से होते हुए वो डीएनए निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। एंड देन व्हाट हैपन, तो इट मींस आपको ये याद रखना है, मोर द पाउडर एग्रोज पाउडर, ए स्मॉलर विल बी द डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पाउडर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डीएनए का जो फ्रेगमेंट होगा वो अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा होता चला जाएगा। देखिए अब फिर बात आती है सैटेलाइट डीएनए की। तो सेट डीएनए इज बेसिकली दोज डीएनए सीक्वेंसेस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एडेनिन रेसिड्यू। सेट मतलब साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिडीन डीएनए, सेट डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। ये नॉर्मल डीएनए जो है, ये डीएनए नॉर्मली कुछ ना कुछ संख्या में हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, लेकिन इसकी संख्या फिक्स होती है। अगर ह्यूमन मतलब होमोसेपियंस की बात करेंगे तो उसमें फिक्स होगी, अगर टाइगर की बात करेंगे उसमें फिक्स होगी। तो देयर इज अ द फिक्स्ड नंबर ऑफ द सेट डीएनए दैट विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट फॉरेंसिक साइंस एंड डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, क्लियर। नोट में लिखिए फ्रेडरिक सेंगर, नोट में लिखेंगे फ्रेडरिक, FREDERIC, फ्रेडरिक सेंगर, SANGAER। फ्रेडरिक सेंगर introduced a new technique, Frederick Sanger, excuse me, Frederick Sanger, एक बोर्ड पे मैंने नाम लिख दिया है। फ्रेडरिक सेंगर इंट्रोड्यूस्ड न्यू टेक्निक ऑफ जीन सीक्वेंसिंग, न्यू टेक्निक ऑफ जीन सीक्वेंसिंग। न्यू टेक्निक ऑफ जीन सीक्वेंसिंग that help us
that help us to know pattern of arrangement of to know pattern of arrangement of pattern of arrangement of pattern of arrangement of nitrogenous base pair, pattern of arrangement of nitrogenous base pair. डन. सेट डीएनए के बारे में लिख लीजिए. सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट ऑफ large number of tandem repeats, large number of tandem repeats, full stop. It consists of maximum non-coding, it consists of maximum non-coding gene sequences, maximum non-coding gene sequences. अब जरा ये जो डायग्राम बना है इसको भी कॉपी कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा, याद रखने में आसानी होगी. जब बेटा आप इसको 5 महीने 6 महीने के बाद जब एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी. मोर एगेरोस, least pore size, a smaller DNA can only pass. यहां less agarose, more pore size, pore size maximum, large DNA can pass, can also pass. याद रहेगा है ना. एग्रोज बहुत जब कम है तो जो पोर साइज है, पोर तो बड़े डीएनए बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे. पोर साइज अगर छोटा है ठीक है. ये हो गया आपका एगोरोज जेल. कॉपी करिए, कॉपी कर दीजिए जरा फटाफट. डन. रिप्लाई कर दीजिएगा बेटा डन हो जाए तो. Very good, Rahul. You are very prompt today. Thank you. लिखेंगे EST, expressed sequence tag, EST, expressed sequence tag and annotation, मतलब बताना, annotation,
expressed sequence tag EST and annotation are major process are major process used major process used in major process used in major process used in DNA fingerprinting देखिए राहुल ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये छूट गया था। साउदर्न, ये शायद मैंने बता दिया है क्या? साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नाम दिया गया। डीएनए को जब आइसोलेट करते हैं तो साउदर्न है, जब आरएनए को करते हैं तो नॉर्दर्न है, और जब प्रोटीन को सेपरेट करते हैं तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। इसको कॉपी कर लीजिए। साउदर्न ब्लॉटिंग इज टू सेपरेट द डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज टू सेपरेट द आरएनए, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज टू सेपरेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर टू नाउ? सबको क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर आपका फाइनली फिनिश्ड हो गया। एक बार जरा फिर से फटाफट जरा देख लीजिए चैप्टर बुक में, कहीं कोई ऐसी चीज छूट तो नहीं गई है। तो आपकी क्लास आज थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। पार्टी शार्टी होगी आज 20 मिनट का। बताइए। एनीथिंग लेफ्ट या अनटच्ड? आई होप कि इट इज ऑल फिनिश्ड। इसके बाद हम लोग बायोटेक चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है और मेरी दिली तमन्ना भी है ये कि थोड़ा बहुत घर पे 1-2 पेज स्टार्टिंग वाला पढ़ लीजिएगा चैप्टर को। प्रीति, सिमरन, राहुल, स्वीटी चौधरी, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। हम 2 प्रोब को, 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स को अगर मिक्स कर देते हैं, जोड़ देते हैं, रख देते हैं एक के ऊपर एक, और वो अगर बॉन्ड बना लेता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एसपीडीएफ वाला, तो यहां पे हो गया इंटरमिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम डीएनए को सेपरेट करते हैं ना ब्लॉटिंग पेपर पे, और जब हम उसको ब्लॉटिंग पेपर को ट्रांसफर करते हैं और हाइब्रिडाइज करते हैं वीएनटीआर प्रोब से, अगर सीक्वेंसेस सिमिलर होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, तो वो जुड़ जाएंगी, तो अपने आप वो हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, जुड़ने के बाद मिक्स हो जाएगा। सिमरन, एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड, गुड गर्ल। क्लास एंड करें? कोई डाउट नहीं किसी को? प्लीज चेक इट केयरफुली इफ इज एनीथिंग लेफ्ट। भाई वैसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए तो मुझे भी दिली तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि बुक्स आपके पास हैं अभी।
चलिए फिर, गुड इवनिंग, टेक केयर, शब्बा खैर, जय श्री राम, आदाब और जय, शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।